students, in this video we are going to read about the meiosis 1 phase. I told you the meiosis is having your two phases, that is your meiosis 1 and meiosis 2. First we will be seeing the meiosis 1. The meiosis 1 is having your two phases, that is your nuclear division phase, that is your karyokinesis, which is depicted as karyokinesis 1, and it is also having your cytoplasmic division phase, that is your cytokinesis 1. So first we will go for your karyokinesis 1. In the karyokinesis, like that of your mitosis, it is also having your subphases like your prophase, metaphase, anaphase and telophase. So here also it is having your subphases, but we are depicting it as numbers like your prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, because it is coming under your meiosis 1. Okay. So before entering into the M phase, before entering into the prophase of the cell division, the cell has undergone your interphase. जैसे कि हम लोगों ने सेल साइकिल में पढ़ा था कि कोई भी सेल एम फेज में एंटर कर रहा है जिसमें सेल डिवीजन हो रहा है माइटोसिस या मेयोसिस, उससे पहले वो इंटरफेस करता है, सारा का सारा चीज वो प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन. तो फर्स्ट आई एम showing you the structure of your interphase cell. Here it is the interphase cell which is already has gone your preparation. It has prepared all the materials for the cell division. It is having your intact nuclear membrane. It is having your centriole. It is having your chromatin reticulum, etc. Now this interphase cell is entering into the M phase, into the prophase 1 phase. Okay. In the prophase 1, I told you that it is a complicated phase of the meiosis 1. सबसे complicated phase जो होता है meiosis में, that is your prophase 1, ये भी और बहुत ज़्यादा longer phase होता है क्योंकि इसके बहुत सारे sub phases होते हैं. जैसे कि मैंने बताया था prophase 1 is having your 5 sub phases, that is your leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis, etc. So we will be seeing what are the different type of events that are taking place in during the different subphases. This is a cell structure which is seen during the leptotene phase. So what happens during the leptotene phase? लेप्टोटीन फेज में क्या होगा? प्रोफेज 1 में जब लेप्टोटीन फेज स्टार्ट होने जा रहा है, द सेल विल बी हैविंग ऑल द सेल ऑर्गेनल्स. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट रहेगा. पहले क्या होता था प्रोफेज के टाइम पे, माइटोसिस में अगर याद करोगे तो जैसे ही माइटोसिस का प्रोफेज शुरू हो रहा था उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते थे. उसके बाद आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल वो भी डिसअपियर हो जाते थे. मगर ये चीज नहीं होगा, ये लास्ट में होगा. पहले प्रोफेज 1 में जो लेप्टोटीन फेज में अगर सेल के स्ट्रक्चर को देखोगे, इट विल बी हैविंग योर इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. chromatin fibers will be there and the chromatin fibers will be attaching to the one end of the nuclear membrane and looking like bead like structure. Okay. It will be also having your centriole. So during the leptotene phase, the cell will be looking like this. Here the chromatin fibers get condensed and it is attaching to the one end of the nuclear membrane and looking like a beaded structure. And the nuclear membrane do not disappear and membrane bound organelle also will be there. They will also not disappear. This is the structure of leptotene phase of a cell. Next stage of the prophase 1 is your zygotene phase. Zygotene phase में क्या होगा? Here your chromatin fibers, they will get condensed and they will be converted into rod like structure, that is your chromosomes. And these are the, you can see here 4 chromosomes are there. Okay. Here what happened? There will be the pairing of the homologous chromosome will be taking place. Okay. Homologous chromosomes कौन होते हैं? As you know that in case of humans we are having 23 pairs of chromosome in the somatic cell. Okay. सोमैटिक सेल में हमारे 23 पेयर्स के क्रोमोसोम्स होते हैं. एक पेयर में कितना क्रोमोसोम रहेगा? 2 पेयर
synapse. The pairing of homologous chromosome during the time of zygote is taking place. That is called as your synapsis. And to hold the two chromosome, एक पेयर का दो क्रोमोसोम जो हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है. दोनों को होल्ड करके रखने के लिए देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नीडेड. दैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज हेल्पिंग इन द binding of the two homologous chromosome. That complex is known as your synaptonemal complex. Synaptonemal complex is nothing but the protein complex which is holding the two homologous chromosome. Okay? So यहाँ पे देखोगे एक पेयर में आपके दो क्रोमोसोम हैं and the two chromosome present in the single pair, they are called as a homologous chromosome. Okay? And the situation can be called as a dyad structure or it can be called as a bivalent structure. Dyad मतलब यहाँ पे दो क्रोमोसोम है तो इसको dyad भी बोल सकते हो और इसको भी bivalent भी बोल सकते हो. मगर जब मैंने बताया था हम लोग जब पढ़े थे किसमें माइटोसिस में मेटाफेज में हम जा रहे थे जब उसमें हर क्रोमोसोम क्या कर रहा था स्प्लिट हो रहा था टू क्रोमाटिड्स में. ठीक है. तो यहाँ पे देखोगे यहाँ जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ईच ऑफ द क्रोमोसोम दे विल बी स्प्लिटिंग इनटू टू क्रोमाटिड्स. ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे दो क्रोमाटिड्स में स्प्लिट हो रहा है. ये जो क्रोमोसोम है वो भी दो क्रोमाटिड में स्प्लिट हो रहा है. तो यहाँ पे आप कितने आर्म्स देख रहे हो 1 2 3 4. यू आर हैविंग 4 आर्म्स बिकॉज द होमोलोगस क्रोमोसोम दे हैव स्प्लिटेड इनटू योर क्रोमाटिड्स. ओके. एक क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स को जो बोला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा सिस्टर क्रोमाटिड्स. ओके. एंड यहाँ पे देख रहे हो इस क्रोमोसोम का जो क्रोमाटिड है इस क्रोमोसोम का जो क्रोमाटिड है इन दोनों को बोला जाएगा क्या नॉन सिस्टर क्रोमाटिड. ओके. एंड यहाँ पे चार आर्म्स देख रहे हो तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा क्या टेट्राड. ओके. द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर टेट्राड. Okay, you will be seeing this structure in the next subphase that is your Pachytene phase. Okay, so यहाँ पे देख रहे हो एक होमोलोगस क्रोमोसोम में दो आर्म्स जो है वो दोनों आर्म्स को सिस्टर क्रोमाटिड्स बोला जाता है. एंड इस क्रोमोसोम का जो आर्म एंड इस क्रोमोसोम का जो आर्म दोनों अलग क्रोमोसोम के दो आर्म्स हैं उनको बोला जाता है क्या नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स. ओके. तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है नेक्स्ट फेज में आफ्टर स्टडीइंग द जाइगोटिन फेज. जाइगोटिन फेज में आपका क्या हुआ सिनेप्सिस हुआ. सिनेप्सिस का मतलब क्या है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके. बाय मीन ऑफ योर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ओके. देन नेक्स्ट फेज में क्या होगा नेक्स्ट फेज कौन है आपका पैचिटिन फेज. पैचिटिन फेज में क्या होगा यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट हो चुके हैं और क्रोमाटिड्स बना चुके हैं. सो यू विल सी द सेल ओवर हियर. ओके. यू विल सी द सेल ओवर हियर. यू विल सी द सेंट्रियोल ओवर हियर एंड यू विल सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो ओवर हियर. ओके. बट इनसाइड द न्यूक्लियस यू विल सी दैट there will be the crossing of your non-sister chromatid segment. Okay. तो यहाँ पे जो मेन फेनोमेना है पैचिटिन का दैट इज योर क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर क्या है ये जो देख रहे हो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं इन दोनों के बीच में सेगमेंट एक्सचेंज होगा. इस तरह से सेगमेंट एक्सचेंज होगा. दोनों को क्रॉस करेंगे इस तरह से एंड जहां पे वो क्रॉस कर रहे हैं उस क्रॉसिंग वाली जगह को बोला जाता है क्या काइजमाटा. ओके. After crossing, there will be the exchange of segments, chromosomal segments between the non-sister chromatids. That phenomena is called as your crossing over. Crossing over is the most important thing for your recombination of genes. जिसके द्वारा हमारा हम जो भी कुछ वेरिएशन देख रहे हैं पेरेंट्स जो कि वेरिएटेड है फ्रॉम ऑफस्प्रिंग जो वेरिएटेड है फ्रॉम पेरेंट्स because of this crossing over which is occurring during the time of meiosis. Okay. So crossing over का मतलब क्या है crossing over is nothing but the exchange of chromosomal segments between the two non-sister chromatids. Okay. And this is taking place with the help of enzyme that is your recombination
क्लोरोफिनेज एंजाइम, ओके। एंड यहाँ पे जो क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग हो, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहे हैं दोनों, जहाँ पे दोनों को क्रॉस कर रहे हैं उस प्लेस को बोला जाता है क्या, काइजमाटा, ओके। सो दीज आर द थिंग्स which are occurring in the sub phase, that is your Pachitin. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि during which phase the crossing over is occurring in case of your meiosis, you can tell that it is occurring in the Pachitin phase of the prophase 1. And what is crossing over? Crossing over is nothing but the exchange of chromosomal segments between the two non-sister chromatids, okay. इसके बाद नेक्स्ट फेज क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट फेज इज योर डिप्लोटिन फेज। डिप्लोटिन फेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अब धीरे धीरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होने लगेंगे, दे विल गेट डिस्टेंस्ड फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल बी ट्राइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो ये कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को जोड़ के रख रहा है कौन, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को तोड़ना पड़ेगा, सो फर्स्ट विल बी द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स breaking will be taking place so that the homologous chromosome with the chromatids will be separated. At some places they will be jointed like that of your chiasmata junction, okay. Slowly there will be the separation of the homologous chromosome is taking place in case of your diplotin. That phenomena is called as your disjunction. Disjunction is nothing but the phenomena where the separation of homologous chromosome is taking place, okay. And next thing is what happening in case of your diplotin, there will be the terminalization of chiasmata, okay. टर्मिनलाइजेशन होगा किसका, काइजमाटा। काइजमाटा मैंने बताया था जहां पे आपका दो क्रोमोसोम का सेगमेंट, क्रोमैटिड्स का सेगमेंट क्रॉस कर रहा है, वो धीरे धीरे अनजिपिंग होगा, अनजिपिंग होगा और दोनों क्रोमैटिड्स धीरे से अलग हो जाएंगे। इसका कुछ सेगमेंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसका कुछ सेगमेंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा इज ऑकरिंग इन केस ऑफ योर डिप्लोटिन। एंड द लास्ट फेज ऑफ योर प्रोफेज 1 इज योर डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में नथिंग बट क्या होगा, जैसे प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में आपने जो चीज देखा था, लेट प्रोफेज में वही सारी चीजें होंगी। अभी तक तो सारे जगह पे देख रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, आपका सेंट्रियोल इंटैक्ट है, सारा मेम्ब्रेन बाउंड इंटैक्ट है, मगर यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो सेंट्रियोल्स है वो एस्टर्स फॉर्मेशन करके दोनों पोल की तरफ चले जाएंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। Then the chromosomes will be again condensed and they will be converted into your single rod-like structure. Chromatids नहीं रहेंगे, rather they will be represented by single rod-like structure. Okay? तो यहाँ पे chromosomes है जो कि attached है आपके spindle fiber के साथ with the help of your centromere. Okay? So these are the phenomena which is occurring in case of your diakinesis, and दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के जो ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग फेज है और कॉम्प्लिकेटेड फेज है, हमेशा याद रखो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गेटिंग द क्वेश्चन दैट इज योर वेयर द सिनेप्सिस इज टेकिंग प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय सिनेप्सिस? सिनेप्सिस कहाँ पे होता है? सिनेप्सिस होता है आपका कहाँ पे, आपके जाइगोटिन फेज में होता है। सिनेप्सिस का मतलब क्या है, जहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का आपका पेयरिंग होता है, ठीक है। ये किसके हेल्प में होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प पे होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसमें, पैचिटिन फेज। पैचिटिन फेज में जो क्रॉसिंग ओवर आता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर मेयोसिस 1, ओके। थैंक यू।